पद्मश्री श्री कृष्णा पटेल जी, श्री मित्र भानु गौंतिया जी, श्री जितेंद्र हरिपाल जी, guests on the dais, Sri Sanjeev Bajaj ji, Honorable MLA Rengali Sri Nauri Naik ji, Sri Amarendu Prakash, CMD SAIL, Jayanti Mahapatra, Founder and CEO of Manikastu, Srimati Shulochana, Master Weaver, Professor Manoj Tiwari, Director IIM Mumbai, Professor Mahadev Jaiswal, Director IIM Sambalpur, distinguished guests and friends from the industry, faculty members, young innovators, entrepreneurs, and dear students, friends from media, ladies and gentlemen. 2 days fast march, we are organizing the second conclave of 100 Cube. The first one we organized at IIT Bhubaneswar on the occasion of Foundation Stowing Link program of Research Park. Friends, first of all, I congratulate the official band of IIM Sambalpur. In the true spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, decades ago, Honorable three Padma Shri awardees envisioned a cultural concept. Rangavati is not a folk song. It represents a sentiment. It is innovation. It's a social innovation. It invokes spirits of creativity. Today we saw the spirit of Rangavati from the band. None of them are the native of the state, but all of them are adapted the culture. This is the true spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. Friends, you may not be born in this state of Odisha, but you all are here, the part of Odisha today. The 2036 we will get opportunity to celebrate our 100th year of first linguistic state of our country. In 1936, in the British period, there is a new administrative area has been carved out on the linguistic basis, the Odia language basis, will completing its 100th year. In the era of knowledge century, in an era of knowledge-based economy, in the era of technology-driven economy, now our youngsters, our new generation has to be prepared ourselves by next one decade. We have to prepare ourselves. We have to become job, not only job creator, job seeker, we have to become job creator. Like Rangavati, this 100 Cube is a sentiment. 100 Cube is going to be a mass movement. 100 Cube is going to be a culture. Culture of innovation, culture of entrepreneurship, culture of new idea. IIM Sambalpur is a right place. IIT Bhubaneswar is also a right place. And NIT Rourkela will be the natural place to envision this 100 Cube idea. I am thankful to my dear friend Sanjeev Bajaj ji. He added on a new factor in this 100 Cube movement. At least out of this 100 Cube, 100 startups,
10 should be unicorn. That means there is a guarantee of entrepreneurship in next decade. Odisha is full of talent, and it is a nice coincidence. Surrounding IIM Sambalpur, the prestigious Veera Surendra Sai Technology University is known as Burla Engineering College is there. Medical College is here. Two prestigious universities of Odisha are also here in this city. Gangadhar Mehar University and Sambalpur University. That means with these 5 prestigious national institutions, some of them may be state universities, but looking into their background, all are very important institutions and the national level institutions. I put forth this challenge. Prime Minister Modi has given a clarion call. We have to be wealth creator. Wealth creator will create more jobs, more economic opportunity for the bottom of the pyramid of our society. And what will be the area of new entrepreneurship? Certainly, the societal need. Rightly, Sambalpur has envisioned healthcare will be a priority area. Textile will be a priority area. Agri product will be a priority area. Mines and mineral resource will be a priority area. And Amarendu just now offered you a marketplace. For the startup ecosystem, 3 primary things are expected. You must get one mentor. आपकी कोई साथी होनी चाहिए, आपकी कोई बड़े भाई होनी चाहिए, आपकी गलती करने से उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने लायक कोई होनी चाहिए. Education institutions are natural place of mentors, and the faculty, the talent pool of our faculties is the right persons to be mentored these startups. आपके पास पूंजी होनी चाहिए. I think there is no dearth of resource today in our country. But challenge is how to link with the resource and the new ideas. An incubation center, movement like 100 Cube will facilitate all these things. And finally, to monetize your idea, monetize your product, monetize your project, you need marketplace. An industry like infrastructure industry like Coal India, MCL, NELCO, certain private sector in steel and aluminium, and institution and organization like SAIL are the natural partner of us. And IIM is going to take lead of all these things in this area. And friends, this is our opportunity, this is our moment. दुनिया भारत की ओर 2 कारण से बड़े उत्सुकता के साथ देख रहा है. India is essentially a knowledge-based society. Thousands years ago, we have envisioned, we have imagined about a modern and scientific lifestyle. Veda is 8,000 years old according to Tilak ji. 8,000 साल पुरानी तत्व है वेद. मैं कल एक अवसर मिला मेरे को उज्जैन में, उड़ीसा के एक दुरंत इलाका जिसको हम दुरंत इलाका कहते हैं, मयूरभंज जिला के एक आज की एक आदिवासी बाहुल्य इलाका में 300 साल पहले उड़िया लिपि में संस्कृत भाषा में ऋग वेदों की भाष्य को मैंने कल देखा उज्जैन की एक पाठशाला में.
It shows the depth of our society. This is the example of knowledge-based society. भारत की युवाओं के अंदर स्टेम एजुकेशन की एक नेचुरल एप्टीट्यूड है. अभी दुनिया में स्टेम एजुकेशन सबकी आग्रह की विषय है. मैं अगर शिक्षा विभाग की ओर से एक तथ्य आपके सामने रखूं, दुनिया में स्टेम में जो बच्चे पढ़ते हैं और भारत में स्टेम में 100 में से 43 स्टूडेंट्स आर गर्ल स्टूडेंट्स. आई एम हैप्पी Jaiswal ji informed all of us in this year's batch 60% of IIM Sambalpur are girl students. And today 43% of Indian STEM students are girls. यही दुनिया की हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स है. दुनिया में किसी भी देश में इतने संख्या में लड़कियां स्टेम एजुकेशन में नहीं है जो हमारी भारत में है. मैं अगर इसमें एक एग्जांपल बताऊं, हमारी साथ जयंती महापात्र है. ये और वो अपना पति दोनों इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, राइट. मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट, वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है. दोनों क्या काम करते हैं? स्टार्टअप क्या होता है? मे बी आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे. व्हेन आई मेट जयंती हैज बीन promoted by none else than Prime Minister Narendra Modi just last Sunday. In his Mann Ki Baat, Prime Minister Modi recognized the effort of this Manikastu company about Jayanti and her husband. What are they doing? Where are they doing? दोनों मिलके कलाहंडी जिले में, कलाहंडी एक समय में स्टारवेशन की पर्यायवाची था. उस कलाहंडी जिले में आज दोनों कलाहंडी के नहीं है. देखो नया व्यक्ति कैसे सोचता है. दोनों मूल तो जन्म तो कलाहंडी के नहीं है. दोनों ने वहां एक गोट बैंक चलाते हैं. आप पहली बार भी सुन रहे होंगे गोट बैंक. हम तो ब्लड बैंक सुना था, बुक बैंक सुना था, टॉय बैंक सुना था, लेकिन वो गोट बैंक चलाते हैं. 4 करोड़ की बिजनेस कर चुके हैं. अपने कॉस्ट पे, अपने रिस्क पे. एनबीएफसी, थोड़ा आपकी मदद लगेगी संजीव जी. आप तो लिविंग बीइंग पे शायद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी एक चैलेंज भी हो सकता है. बच्चे कैसे सोचते हैं, नया पीढ़ी कैसे सोचता है? अपने कॉस्ट पे लोन लेते हैं, अपने रिस्क पे लोन लेते हैं. 19% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं. वो गोट को किसी किसान को देते हैं. वो किसान उस गोट को उनकी रेयरिंग कर, उसको पालन करता है. ये मेडिसिन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, गोट फीड भी देते हैं, और बाद में उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग होती है. उस गोट कि अगर 6 बच्चा होता है, 3 बच्चा ये लेते हैं, 3 बच्चा उस मालिक को छोड़ जाते हैं प्रिंसिपल गोट के साथ. मैंने कहा ये सब मेरे को कहानी लगा. ये एनजीओ है, केवल एनजीओ ना, हमने एनजीओ नहीं है, हम कंपनी है. उसमें और कुछ उन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम ये आपको एक ही बताए, बाकी चीज मेरे को बताए नहीं. फॉर्मूला को छुपा के रखे हैं. मैंने आगे पूछा भी नहीं. कितने लोग आपके साथ अभी जुड़े हैं? So there are 1,000 farmer families. Other than that, we have a set of PSS, which is 60. And प्राइमरीली 1000. Yeah. 1000 लोगों को धनी बनाने के काम पे लगे हैं, खुद धनी बन रहे हैं और गोट बैंक चला रहे हैं. ये स्टार्टअप है. अभी अभी संजीव जी कहते 1,11,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है. डीपीआईटी की रजिस्ट्रेशन है उनके पास. लेकिन अभी ये भारत, मैंने कहा कि ये भारत की मोमेंट आ गया. ये सब हम लोग मिलके, हम तो एक टेम्पलेट दिए पूर्वोदय का,
हमने तो एक टेम्पलेट कहा कि 2036 का, बड़ी टेम्पलेट है तो 2047। जब भारत अपने आजादी का 100 साल पूरा कर रहा होगा, भारत एक युवाओं की देश है। भारत की पहला पूंजी उसकी टैलेंट, उसकी नॉलेज, दूसरी पूंजी दुनिया के अंदर जितने यंग लोग हैं, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है। इसी दो को लिवरेज करते हुए हमें एक नई दुनिया बनानी है। आज संबलपुर में और एक अच्छा काम हुआ, जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा संजीव बाजाज जी को। संजीव बाजाज जी का जो फिनसर्व कंपनी है, उन्होंने उड़ीसा में 60 कॉलेज में 100 आवर्स की एक एक स्टूडेंट के ऊपर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल उन्होंने बनाई, सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने बनाई है, बैंक फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस के लिए। और उसमें से अभी तक उड़ीसा में 1100 बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है। आज उसमें से कुछ बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया। तेजी से दुनिया में भारत की फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ रहा है। भारत और कुछ सालों के बाद दुनिया की 3 नंबर बड़ी इकोनॉमी होगी। जब 2047 हम पहुंचेंगे, आज भारत की इकोनॉमी साइज $4 ट्रिलियन है। 2047 तक भारत की इकोनॉमी साइज 30 से 35 ट्रिलियन होगा। तो आईआईएम के बच्चे तब नौकरी नहीं ढूंढेंगे, आईआईएम के बच्चे यूनिकॉर्न ही बनाएंगे। यूनिकॉर्न सिर्फ भारत के मार्केट के लिए नहीं बनेगा, दुनिया की रिक्वायरमेंट के लिए बनेगी, दुनिया की रिक्वायरमेंट के लिए बनेगी। और उसकी रेंज क्या होगा? यह हमारी सुलोचना यहीं बैठी है। सुलोचना टेक्सटाइल की एक डिजाइनर है। वो बहुत फॉर्मली, उसकी कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, निफ्ट में पढ़ाई नहीं की, लेकिन निफ्ट की प्रोफेसर से कोई कमी नहीं है उसके पास। थोड़ा बहुत उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा जायसवाल जी को, उन्होंने उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके उसको अभी मास्टर ट्रेनर बनाई। अभी सुलोचना खुद कह रही थी, मैं लेह लद्दाख गई थी, ट्रेनिंग देने के लिए गई थी। लेह लद्दाख की भाषा उनको आती नहीं है, इसकी भाषा उनको आती नहीं है, फिर भी ट्रेनिंग देके आ गई। ट्रेनिंग की इतनी ताकत है मित्रों। इनोवेशन की कोई भाषा नहीं रहता है, इनोवेशन की कोई भाषा नहीं है। ये दुनिया के हम सब पहने हैं, जो सब संबलपुरी टेक्सटाइल, इसको बनाने वाला कोई निफ्ट की स्टूडेंट नहीं है, ये सुलोचना जैसे कोई बहन है। ये टैलेंट है, टैलेंट और इनोवेशन की डिग्री से कोई संपर्क नहीं है। कॉम्पिटेंसी चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, जो रंगवती गाना ने आज हमको दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने कभी जायसवाल जी को कहा कि जायसवाल जी एक रंगवती सेंटर बनाओ संबलपुर में। रंगवती एक सेंटिमेंट है, 100 क्यूब एक सेंटिमेंट है, उनमें से 10 यूनिकॉर्न बनाना एक सेंटिमेंट है। मित्रों, आजादी की दीवाने इसी भूमि से वीर सुरेंद्र साय 37 साल असीरगढ़ की जेल में रहे। यह कोई उनकी जमीन की झगड़ा नहीं था, आजादी के लिए दीवाने थे, वो सेंटिमेंट था, इसीलिए उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया, तो आज हम सुरक्षित हैं। आज 21st सेंचुरी में भारत को बड़ा बनाने के हमको एक सेंटिमेंट बनानी पड़ेगी। आज आप सभी को मैं शुभेच्छा देता हूं। मैं बहुत अच्छे स्टार्टअप को यहां देखा, दे ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट थिंग। यहां इस इनोवेशन सेंटर को भी, आई हब को भी मैंने देखा। आज आईआईएम संबलपुर, आईआईएम मुंबई मिलके दोनों ने उड़ीसा की लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले कंपनियों के लिए, आज तो कोल इंडिया उसमें आया है, नेल्को आया है, सेल को भी मैं अमलेंदु जी कहूंगा आप उसमें ज्वाइन करो। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़े, गति शक्ति के नाते हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। ऐसे अनेक इंटेलेक्चुअल काम आज शुरू हुए हैं। मैं आज के अवसर पे जिन सभी लोगों ने आज यहां एकत्रित होकर उस सेंटिमेंट को, इस भावना को, इस स्पिरिट को आगे ले जाने के लिए काम किया, आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। बहुत धन्यवाद।